Hi friends, Assalamu alaikum. This is Dani Mangri again and I welcome you to Dealing with It. In today's video lecture, we are going to discuss about the ideas of John Locke about the relation between language, relation between sounds and thoughts. Moreover, we will also look at the imperfection of the word in our communication. Before that, if you are new to my channel, please like, share and subscribe to it. Friends, as you all know that human mind is full of thoughts and ideas, but what if there were no external sensible signs? Here, external sensible signs means words. What happens if we don't have words? Of course, those ideas and thoughts would be limited to one's mind and couldn't be led before others. This is what happens if we don't have words in order to communicate. Interesting is that how those arbitrary sounds were said to refer ideas because there is no any natural relationship between signs and the idea to which it refers. See how interesting is that if there is no any natural relationship between the sound or the word and the thing or idea to which it refers, if there is no any relationship between these, then how we select a particular word for the particular thing? How did we select a particular word for the particular idea? This is so interesting, huh? So we will be discussing this in our this video. We need these signs. Why do we need these external sensible signs? Let's see. We need these signs either to record our own thought memory or to share our idea or thought with others. There are two reasons of these external sensible signs. One is in order to recall our memory, and in other the other need is if we want to share our ideas, our thought with others. Of course, we have a great need of these external sensible signs, or we can say words. According to John Locke, words are arbitrary symbols of ideas in the mind, not of things in the world. And this is important. This is like the basic idea of the John Locke. He wanted to say that the words that we have selected is not actually the name of the thing that exists in the world, but actually that word is selected for the thought. What what does it mean? Let's elaborate. By this he means when we name, we are not actually naming object. Are you getting? When we name, we are not actually naming the object, but first starting our mental idea of those objects and then naming those ideas. This means if when we are naming anything, any idea, it doesn't mean that we are naming to that exact object. No, we are getting idea from that object, and now there is idea in our mind, and we are giving name to that idea. We are giving name to that idea, not actual thing. This is like a basic concept or the basic thing that John Locke wanted to convey. जॉन लॉक के आइडिया को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो हम किसी चीज़ का नाम दे रहे हैं वो उस चीज़ को नाम नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ से हम आइडिया ले रहे हैं, आइडिया अपने माइंड में रख रहे हैं और फिर उस आइडिया को नाम दे रहे हैं। डायरेक्ट उसको नाम नहीं दे रहे चीज़ को, चीज़ से आइडिया ले रहे हैं, आइडिया को नाम दे रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने एक घोड़ा देखा, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने माइंड में उसका आइडिया लूँगा कि भाई एक एनिमल है, चार टांगे हैं, उसका काम क्या है, लाइक दिस, दो कान हैं। अब मैंने ये सब क्या लिए, आइडियाज़ लिए। अब मैं जो घोड़ा नाम दे रहा हूँ उन आइडियाज़ को दे रहा हूँ, आइडियाज़ को दे रहा हूँ, घोड़े को नहीं दे रहा। देखिए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ये बात थी जो जॉन लॉक एक्चुअली कन्वे करना चाह रहा था। अब इसका एग्जांपल अब हम अगर देख लें, अगर मैं जॉन लॉक से पूछता कि हम जो है जो बर्फ़ होती है वो फ्रिज से लेते हैं, या फिर मैं कहता कि जो फ्रिज है जो कि कॉमनली हमारे घरों में यूज़ होती है, अगर मैं उससे बोलता कि फ्रिज हमें बर्फ़ देती है, तो आप सब लोग में कॉमनली ये जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन यही बात अगर जॉन लॉक से पूछते तो वो बोलता कि नहीं, फ्रिज हमें कूलिंग देती है, कूलिंग से बर्फ़ बनती है,
यानी वो ये कहता कि फ्रिज जो है हमें बर्फ़ बना के नहीं देती, फ्रिज कूलिंग बनाती है और कूलिंग बर्फ़ बनाती है। बात एक ही है, लेकिन इस बात को जिस तरह से उसने लैंग्वेज की और साउंड के रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसी तरह से वहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हम चीज़ से आइडिया ले रहे हैं, सेम तरह से हम फ्रिज से कूलिंग ले रहे हैं और कूलिंग बर्फ़ बना रही है, तो उसी तरह से आइडिया को नाम दे रहे हैं। आई गेस समहाउ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हम जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे आइडिया ले रहे हैं और फिर आइडिया को नाम दे रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। He says imperfection of word creates doubtfulness और ambiguity। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हम कम्युनिकेशन में अगर वर्ड इम्परफेक्टली सेलेक्ट कर दें या रॉन्ग वर्ड सेलेक्ट कर दें तो वो डाउटफुलनेस और एम्बिग्यूटी पैदा करेगा, कम्युनिकेशन में ट्रबल पैदा करेगा। इट मीन्स इफ़ वी wrongly select the words in our communication, it won't affect the knowledge or actual idea of the speaker, but it will obstacle the process of sharing that knowledge and idea। यहाँ पर इसके कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कम्युनिकेशन में एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी नॉलेज पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी नॉलेज पे असरअंदाज बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन में मसला पैदा करेगा, ऑब्स्टिकल पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। अब ये क्यों है? अगर आपने पहली वाली बात सही से समझ ली तो आपको ये भी समझ आ जाएगी, क्योंकि जो मैंने नाम सेलेक्ट गलत किया, लेकिन जो मेरा आइडिया मेरे माइंड में है वो तो सेम है ना। सेलेक्ट माइंड में आइडिया है जो है वो सेम ही है, लेकिन मैंने वर्ड्स गलत सेलेक्ट कर लिया और वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये क्या करेगा, मेरे जो है उसमें स्पीकर की आइडिया में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसका जो आइडिया है वो सेम ही रहेगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करेगा। अगर इसका हम एग्जांपल ले लें, if I have selected the word pen for a marker and I am going to shopkeeper and saying give me a pen। अब देखिए मुझे मार्कर चाहिए, लेकिन मैंने मार्कर की जगह पेन वर्ड इम्परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया। अब मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा और उससे बोलूँगा मुझे पेन दें। अब मुझे मतलब जो चीज़ चाहिए वो मार्कर है, लेकिन मैंने वर्ड पेन यूज़ किया और मेरे माइंड में यही है कि मुझे यकीनन मार्कर ही देगा। तो इसका मकसद कि मेरी जो आइडिया है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वर्ड जो है इम्परफेक्टली या फिर रॉन्ग सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड यही है कि मुझे मार्कर ही देगा, हालांकि मैंने वर्ड भले गलत जो है या फिर रॉन्ग सेलेक्ट किया है। What I am expecting, he will surely give me a marker। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे मार्कर ही देगा। दिस इट मीन्स इट वॉन्ट अफेक्ट माई नॉलेज। स्पीकर की नॉलेज को इसने फ़र्क नहीं, इसमें वर्ड के इम्परफेक्टली सिलेक्ट करने से स्पीकर की नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन बट शॉपकीपर इज़ गिविंग मी अ पेन। अब मसला कहाँ पर आ रहा है? कम्युनिकेशन में। जो शॉपकीपर है वो मुझे मार्कर की जगह पेन दे रहा है क्योंकि मैंने वर्ड सेलेक्ट गलत किया है। I got this is clear to you. Locke believes human mind is storage where we store ideas. The process of thinking is control of those ideas, and verbal communication is sharing of ideas from one person to another. So this is in simple words, I guess this is clear. According to John Locke, human mind is tabula rasa. Tabula rasa means black slate. He believes that human mind is like black slate. We are not given any idea by nature. We drive our ideas through our experiences in the world. Okay. Locke claims there are two ways through which we can gain ideas through experience. Now see, John Locke is saying that human mind is tabula rasa. We get ideas from the experiences. Now again he is clarifying that there are two ways through which we can gain ideas. One is simple ideas of sensation. It means when we use five senses in order to experience something. To this category he named as a simple ideas of sensation। इसका मकसद कि अगर हम
किसी चीज़ को देख रहे हैं, मतलब अपने किसी चीज़ को 5 सेंसेस की बुनियाद पर एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को नाम दे रहे हैं, तो उसको उसने उस कैटेगरी को उसने नाम दिया है सिंपल आइडियाज़ ऑफ सेंसेशन। लाइक स्वीटनेस, स्मूथनेस, कलर, टेस्ट, शेप, साइज, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब मैं 5 सेंसेस को यूज़ करके इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास कोई कलर पड़ा हुआ है, या मेरे आगे एक कोई भी चीज़ पड़ी हुई है जिसकी मतलब मैं साइज़ देकर उसको नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया, अपनी आंखें यूज़ की, जो कि 5 सेंसेस में इंक्लूड होती हैं। अब मैंने उसको देख के, उसका साइज़ देख के, मतलब विद द हेल्प ऑफ माई आइज़ आई नेम दैट थिंग, दिस विल बी कैटेगराइज इन द सिंपल आइडियाज़ ऑफ सेंसेशन। और उसने जो दूसरी कैटेगरी दी है वो है सिंपल आइडियाज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, in which we use processes of our mind. We acquire ideas of perception, reflection, will, desire, etc. अब दूसरा वो है जो कि हम अपने जो 5 सेंसेस हैं उनको यूज़ नहीं करते, बल्कि अपने माइंड को यूज़ करते हैं, माइंड को प्रोसेस करते हैं। हम जो है ख्याल, गुमान, ठीक है, और अपनी पसंद नापसंद या फिर किसी चीज़ की चाहत, हम किस अंदाज से उसको किस हद तक उसको लाइक करते हैं, इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे अगर मैं किसी चीज़ को नाम दे रहा हूँ, तो उस कैटेगरी को लॉक ने नाम दिया है सिंपल आइडियाज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। अच्छा, उसके बाद जब जॉन लॉक ने ये आइडियाज़ दिए कि यहाँ पर 2 वेज हैं, सिंपल आइडियाज़ ऑफ सेंसेशन एंड सिंपल आइडियाज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लोग उससे सवाल हुए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें लाइक मोर देन 2 क्वालिटीज़ हैं, तो उसको आप किस बुनियाद पे नाम देंगे? लाइक लेट्स सपोज हम सॉल्ट का एग्जांपल ले लें, तो बिटरनेस भी है उसमें और उसमें वाइटनेस भी है। अगर हम गोल्ड का एग्जांपल ले लें, उसमें जो है हैवीनेस भी है, येलोनेस भी है, फिजिबिलिटी भी है। तो इनको आप किस जो है बुनियाद पे नाम दिए हमने? तो यहाँ पर जो है लॉ कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दोज 2 टाइप्स, यानी कि जो मैंने 2 टाइप्स बताए उनके बेसिस पे वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट फर्दर आइडियाज़ बाय कंबाइनिंग दीज सिंपल आइडियाज़ इनटू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर उसने बोला कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइडिया का मतलब एक जो है वे भी मौजूद है, जो कि तब होता है जब हमारे पास एक चीज़ में 2 या फिर 2 से ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ मौजूद हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ को मिलाकर भी हम किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं, और उस वे या फिर उस कैटेगरी को हम नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स। ओके। Further, Locke says gold is a complex idea resulting in the combination of simple ideas. अब Locke खुद एग्जांपल दे रहा है कि जो गोल्ड है, गोल्ड वो एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स आइडिया का, जो कि तभी बन रहा है जब सिंपल आइडियाज़ कंबाइन हो रहे हैं। लेट्स सपोज जो गोल्ड है उसमें सिंपल आइडियाज़ क्या हैं कि वो हैवीनेस भी है, एक आइडिया है, येलोनेस भी है, ये भी एक आइडिया है, फ्यूजिबिलिटी भी है, ये भी एक आइडिया है, ठीक है, मेलेबलनेस और फ्रिक्सिटी, ये सारे आइडियाज़ हैं गोल्ड के। तो ये सारे सिंपल आइडियाज़ को मिलाकर जो है गोल्ड को कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की हेल्प से उसे नाम दिया गया है। अच्छा, ये भी बातें क्लियर हो गई। अब जो है जॉन लॉक जो है इसको फर्दर जो है जॉन लॉक फर्दर आइडेंटिफाई 2 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। अब जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की हेल्प से हम चीज़ों को नाम दे रहे हैं, उसके उन्होंने जो है 2 कैटेगरीज बताई, 2 टाइप्स बताए, 2 काइंड्स बताए हैं। वो कौन से हैं? मिक्स्ड मोड्स एंड आइडियाज़ ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, तो इसको जॉन लॉक ने किस तरह से कैटेगराइज किया? इसको उसने एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे कैटेगराइज किया कि मिक्स मोड्स आर दोज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ विच डोंट हैव रियल एग्जिस्टेंस, दे आर ओनली हैव मेंटल एग्जिस्टेंस। उसने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ की मदद से हम किसी चीज़ को नाम दे रहे हैं, अगर वो दुनिया में रियल में एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर जो है वो आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस होगा। अगर वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मिक्स मोड्स होगा। लाइक जस्टिस जो है एक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को जोड़ के उनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है लिया गया है, जस्टिस। अब इसकी जस्टिस की कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये कैटेगरी किस में आ जाएगा? मिक्स मोड्स में। और दूसरी तरफ हमारे पास कैटेगरी है आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस। आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस आर दोज कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ विच हैव रियल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। जो
कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ यानी कि सिंपल आइडियाज़ मिलकर कॉम्प्लेक्स आइडिया के थ्रू हमने किसी चीज़ को नाम दिया है, अगर उसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है तो उससे उस कैटेगरी, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस में। लाइक शुगर हो गया, शुगर जो है इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल आइडियाज़, स्वीटनेस एंड वाइटनेस। सेम इसी तरह से साल्ट, वो भी बिटरनेस और वाइटनेस। तो इन दो, ये जो हैं ऑब्जेक्ट्स, इनकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है तो ये आइडिया ऑफ सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो जस्टिस है जिसकी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो मिक्स मॉड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, जब जॉन लॉक ने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो फिर जॉन लॉक के माइंड में सवाल आया कि चलो ठीक है, हम चीज़ से सिंपल आइडिया ले रहे हैं, सिंपल आइडिया को नाम दे रहे हैं, और अगर किसी चीज़ में दो या दो से ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स का नाम देकर फिर उसको नाम दे रहे हैं। और अगेन अगर कॉम्प्लेक्स आइडिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है रियल वर्ल्ड में तो उसे हम आइडिया ऑफ सब्सटेंस बोल देते हैं, और अगर नहीं कर रही तो मिक्स मोड्स बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें उसने क्लियर कर ली यहाँ तक। और फिर उसके माइंड में सवाल आया कि उन वर्ड्स के बारे में क्या ख्याल है जो कि फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, जिस तरह से प्रपोजिशन हो गई, जिस तरह से कंजक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। उनका रिलेशन जो है एक डायरेक्ट रिलेशन, या उनके पास कोई ऐसा रेफरेंस नहीं होता किसी चीज़ के साथ। तो उसके बारे में जॉन लॉक ने मतलब जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक did not believe that all words stand for ideas, but some words are to express relation between different ideas, and he call it particles। यहाँ पर जो है उसने अपने आप को जो है आर्गूमेंट दिया कि सब वर्ड्स आइडिया के लिए स्टैंड नहीं होते, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि उन आइडिया वाले वर्ड्स के बीच में रिलेशन पैदा करते हैं, और उन वर्ड्स को उसने कैटेगराइज किया कि ये पार्टिकल्स हैं। लाइक जो प्रपोजिशंस हो गए, कंजक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उसने बोला कि ये सारे पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। John Locke believed word is an arbitrary sign of idea. There is no any principle or rule through which we place appropriate signs for any idea। जॉन लॉक बिलीव करता है कि वर्ड जो है आर्बिट्री साइन है आइडिया की, और यहाँ पर कोई प्रिंसिपल या ऐसा कोई रूल नहीं था कि हम किसी चीज़ को उस रूल के मुताबिक ही नाम देते। और ज़्यादा वो एक अपने जो है बुक जो है उसमें कोट कर रहा है कि देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट द कलर ऑफ ग्रास शुड बी कॉल्ड ग्रीन और कलर ऑफ ब्लड रेड। ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप जो ग्रास का कलर है ग्रीन है उसको ग्रीन बोल रहे हैं, या फिर हमारी ब्लड का रेड कलर है उसको रेड बोल रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपने खुद नाम रखे हैं। बाकी इन नामों का या फिर चीज़ों का कोई जो है नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है, आपने रखें। जो है अब सब जो है उस चीज़ को उसी नाम से जानते हैं, तो तभी जो है आप जो है उसको उस चीज़ को उस नाम से पुकारें हैं। बाकी उस चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे इस नाम से पुकारें। John Locke concluded that imperfection of the language can cause obstacle in understanding, acquiring communication and spreading knowledge। जॉन लॉक ये कंक्लूड कर रहा है कि अगर वर्ड्स को आप सही तरह से यूज़ नहीं करेंगे, इम्परफेक्टली सेलेक्ट करेंगे, तो वो जो है ऑब्स्टेकल पैदा करेगा समझने में, एक्वायर करने में, कम्युनिकेट करने में, और अपनी नॉलेज किसी और तक स्प्रेड करने में, फैलाने में, इन सारी चीज़ों में जो है ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। So this was all about John Locke ideas about relation between sound and words and the imperfection of the words। I guess most of the things are clear to you. If still you are not clear with any of the things, you can write your question and the queries in the comment box. I'll try my best to answer you. Thank you so much for watching this video, and if you really liked it, please like, share, subscribe, and share with your friends. Thank you so much, and Jazakallah.